अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। બધાને પોતાનો ઇન્ડિપેન્ડન્સ સોલ છે, તો તમને તમારા સોલ પર કેટલું તમે શું કહી શકો એના વિશે? જાગૃતિ એ નહીં, જાગૃતિ તો પ્રતિષ્ઠિત આત્માની છે, જાગૃતિ આત્માની ક્યાં છે? તો શું પણ મારા તિજોરીમાં હીરો પડ્યો છે તો મને એનું અવેરનેસ છે કે આ ભલે મિકેનિકલ છે, સમજી ગયો. તો તમારા બોડીમાં જે તમારો સોલ છે એના વિશે તમે શું? બસ એટલું. અમારી સોલ વિશેની જાગૃતિ વિશેષ હોય. જેટલું અજ્ઞાન નાશ કર્યું હોય એની વેલ્યુ તમને વેલ્યુ તો જેટલું અજ્ઞાન નાશ કરીએ એટલે આત્માની વેલ્યુ હોય ને. તો એને શબ્દોમાં શું કહી શકે? શબ્દોમાં તો કઈ રીતે કહી શકીએ? હવે 80% 90% પહોંચ્યા હોય તો 90%નું અજ્ઞાન ગયું હોય તો 90%ની વેલ્યુ આત્માની બધી હોય અને સંસારની ઓછી થઈ હોય. 10% અજ્ઞાન છે ત્યાં સુધી 10% રહે, 10% પેલો અનુભવ, પેલાની જાગૃતિ ઓછી રહે. અહીંયા 50% હોય તો 50% રહે. એટલે આ પ્રોસેસની જ વેલ્યુ છે, પ્રોસેસ જ છે. મેં એટલા માટે તો સ્પષ્ટ કીધું, ભલે અનેક લોકો અમારી વાતનો વિરોધ કરે છે, જે શાસ્ત્ર જ્ઞાનીઓ છે, પણ અમે ચોખ્ખું જ કીધું કે આત્માનો અનુભવ લાસ્ટ બર્થમાં જ થાય. ઘણા બધા કહે છે મને અનુભવ થાય છે, મને અનુભવ થાય છે, મને દેખાય છે, આવું કહે છે બધા. ને કહી શકે, દરેકને જે કહેવું હોય કહી શકે. અમારું સિદ્ધાંત ના પાડે છે, શ્રદ્ધાથી જેને જે કહેવું હોય તે કહી શકે, પણ એમાં આપણો કોઈ ઓપિનિયન નથી. પોતાની અંદર જે સિદ્ધાંત આ કહે છે, ભાઈ તમારે માનવું હોય તો માનવું, ના માનવું હોય તો ના માનવું. તમારો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર. મેં ઘણા વર્ષોથી જોઉં છું કે બધા જ મુમુક્ષોને તમે સિદ્ધાંત લક્ષમાં રાખીને એ જ કોન્સેપ્ટ પર વારંવાર તમે ચૂકતા જ નથી. કોઈ અમે બધા જ્યારે પણ કંઈક આડીવડી ગલીમાં જવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ તો પણ ત્યાંથી પાછા ખેંચીને સિદ્ધાંત તો ના જ બદલાય ને. સિદ્ધાંત બદલાય તો પછી દર્શનની વેલ્યુ જ ના રહી ને, પછી દર્શન ના કહેવાય, નોલેજ કહેવાય. અમારા બધાના આ બધા મુમુક્ષોની પુણ્ય હશે કે તમે પણ નથી ચૂકતા અને અમે પણ પ્રગતિ કરી શકીએ. બધાની પૂર્ણાહુતિ દરેક જીવની થાય જ કે કોઈની નહીં બી થાય? થાય એટલે એક સ્વભાવ છે. જેમ શ્રીમદ રાજચંદ્ર કહ્યું, સર્વ જીવ છે સિદ્ધ સમ. વ્યવહાર રાશિમાં આવ્યો ત્યારથી સિદ્ધ સમ જ છે. સિદ્ધ એટલે સિદ્ધના સમકક્ષ જ છે, પણ જે સમજે તે થાય. અચ્છા, એટલે ના સમજે ત્યાં સુધી ફર્યા કરવાનું. હા, એટલે લાખો વર્ષો ફર્યા કરવું પડે, કરોડો થાય, એનો એન્ડ ત્યાં છે. પણ આત્માનો સ્વભાવ ખરો ને કે ઉપર જવાનો. ઓફકોર્સ. અને આત્મા, દરેક આત્માના પોતાના સંસ્કાર બી હોય. આમ તો આખો કે છે આત્મામાં સંસ્કાર ના હોય, આત્માના પોતાના સંસ્કાર, આત્માના ગુણો હોય. અચ્છા, ગુણો હોય, એટલે કાયમી ગુણો. સંસ્કાર તો પ્રકૃતિને કહેવાય. અચ્છા. તો ધારો કે જેમ કુદરતી ધક્કાથી અહીં સુધી આવે, હવે કોઈ માણસ આમ જ્ઞાન પામે ને અંદરથી બી એને શાંતિ હોય, તો કોઈ વ્યક્તિ ધારો કે એવો વિચાર કરે કે મને અત્યારે જ બહુ સારું ફીલ થાય છે, જુદાપણાની જાગૃતિ જો નિરંતર હોય ને તો બહુ ભોગવટો તો આવતો નથી, તો એને એમ થાય કે આ રીતે જન્મ લેવા પડે તેમાં મને કઈ વાંધો નથી, તો બી એ કુદરતી ધક્કાથી ઉપર જ જાય ને. જન્મ લેવા પડે તો વાંધો નથી એવું નહીં, એટલે તો એને અજ્ઞાન છે ને. જન્મ લેવા પડે, પણ ત્યાં જન્મ આવે કેવી રીતે? અજ્ઞાન હોય તો કર્મ બંધાય તો જન્મ આવે ને. ના, તો એને અજ્ઞાન હોય જ નહીં તો કર્મ બંધાય નહીં, તો જન્મ મરણ કેવી રીતે આવે? તો ઓટોમેટિકલી પછી ઉપર જાય ને, તો ઓટોમેટિકલી મોક્ષ થાય ને. એટલે પછી જન્મ મરણ ધીમે ધીમે ઓછા થતા જાય ને પછી એટલે બંધ થઈ જાય. પણ ઓટોમેટિકલી થાય ને, ખાલી જ્ઞાન હાજર રાખે ધારો કે તો બધું ઓટોમેટિક થાય ને. પછી થાય ને ઓટોમેટિક. જેમ અજ્ઞાન હાજર રાખો તો લાખ અવતારે ઓટોમેટિક થાય, અને જ્ઞાન હાજર રાખો તો અજ્ઞાન જન્મ મરણ ચક્કર ધીમે ધીમે બંધ થઈ જાય. જ્ઞાન હાજર રાખવાની મહેનત કરીએ તો મોક્ષ ઓટોમેટિક થઈ શકે. ઓફકોર્સ. એટલા માટે તો એની વેલ્યુ છે ને. અચ્છા, અને અજ્ઞાનની વેલ્યુ સંસારમાં ભ્રમણ કરવું અને જ્ઞાનની વેલ્યુ સંસારને સમાપ્ત કરવું. બરાબર છે. અને બંનેના રોલ અલગ અલગ છે. બરાબર છે. તો જ્ઞાન હાજર રાખવા માટે વાતચીતનો પ્રયોગ હેલ્પફુલ થાય અંદર કે ખાલી છૂટાપણાની જાગૃતિ? છૂટાપણું તો ખરું જ, પણ
વાતચીતથી એ છૂટાપણામાં તમને હેલ્પ થાય. એટલે હાર્ડવેર અને સોફ્ટવેર વચ્ચેનું જે પ્રતિષ્ઠિત આત્મા છે ને હા. એ અંદર વિચાર્યા કરે છે. એટલે વાતચીત કર્યા ખરે ખરે તો એ આ વિજ્ઞાનને સમજવા, વિજ્ઞાનનો ઉપયોગ કરવા માટે અંદર 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 અંતરવાચા ચાલુ રહે. હા તો એ હેલ્પફુલ થાય ને? થાય હેલ્પફુલ થાય. અચ્છા. અને બીજું એક સમજવું હતું કે ગઈકાલે કંઈક વાત થઈ કર્મની, તો કે 8 ભવ ને એવી કઈ વાત થઈ, એ કઈ બહુ સમજાયું ને કે 8 ભવમાં મનુષ્ય ભાવ એક જ વાર મળે. 8 ભવમાં એક વાર મળે એવું નહીં. 8 ભવના કર્મ એક ભવમાં બાંધ્યા હોય તો એની અંદર મનુષ્ય ભાવ તો એક જ વખત બાંધેલો હોય એમ. એટલે આ ભવમાં ધારો કે સામાન્ય રીતે મનુષ્ય ભાવ બાંધે તો એક અવતારનું કર્મ બાંધ્યા હોય તો નેક્સ્ટ બર્થ એનો મનુષ્ય આવે. 2 બર્થના કર્મ આ અવતારમાં બાંધ્યા હોય તો બીજો બર્થ મનુષ્યનો આવે. 4 બર્થના કર્મ આ બર્થમાં બાંધ્યા હોય તો ચોથો મનુષ્ય ભાવમાં આવે. પણ 8 ના બાંધ્યા હોય તો 8મો આવે. એટલે આના પછીનો મનુષ્ય ભાવ આવી શકે ને એના પછી બી મનુષ્ય ભાવ જ આવી શકે ને? એટલે મનુષ્ય ભાવના કર્મથી મનુષ્ય ભાવ અનેક વખત આવી શકે. પણ એવું નહીં ને કે કમ્પલસરી બીજા એમાં જવું જ પડે. એ તો તમે બાંધ્યા હોય તો જવું પડે. હા બાંધ્યા હોય તો ને. હા એ મને સમજાયેલું નહીં. એટલે આ તો સ્કેલ સમજાવે એમ કે કોઈ પણ વ્યક્તિ 8 ભવના કર્મ બાંધે તો 8 ભવમાં મનુષ્ય ભવનું કર્મ એક જ હોય અને 7 ભવ બીજા હોય. માટે છેલ્લો ભાવ પાછો કયો આવે? મનુષ્યનો. પણ કોઈ કહે કે ભાઈ 8 ભવમાં 4 ભવ મનુષ્ય ના હોય તો ના હોય. જેવા કર્મ બાંધ્યા હોય એવું રિઝલ્ટ આવે. હા 8 ભવમાં 4 ભવ ના હોય પણ એક ભાવ પછી બીજો ભાવ મનુષ્ય ના આવે, બીજા પછી ત્રીજો ભાવ મનુષ્ય ના આવે, એમ આવી શકે. પણ એક જ ભાવમાં 8 બાંધ્યા હોય તેમાં 4 ભાવ મનુષ્યના અને 4 બીજા એવું હોય નહીં, એક જ ભાવ હોય. ટૂંકમાં એક ભાવમાં મનુષ્ય ભાવનું કર્મ એક જ બાંધી શકે અને બીજા બધા બાંધી શકે તો મનુષ્ય સિવાય ના હોય. સમજી ગયા? મનુષ્ય સિવાયના કર્મો એ બાંધી શકે, નરગતિ, દેવગતિ, પશુ યોનિના. પણ મનુષ્યનો તો મિનિમમ કે મેક્સિમમ કેટલા બંધાય? એક જ બંધાય. સમજાય છે? પણ ખાલી એક જ ભવનું કર્મ બંધાય એવું બી હોય અને બંધાય તો પછી બીજા દેવીઓની કે ખરાબ કર્મ કર્યા મનુષ્ય ભવનું એક જ બંધાય, એક જ બંધાય. અને એક જ ભવના કર્મ બાંધ્યા હોય તો પછી નેક્સ્ટ ભાવ मनुष्य में जावे. जैसे कि दादाजी ने बोला है कि मेरा जो लेवल है, मेरा जो ज्ञान दर्शन है, तो महात्मा के डेवलपमेंट के हिसाब से मेरे को नीचे आके बात करना पड़ रहा है. तो आपकी परिस्थिति में मेरे को ये जानना है कि आपका जो लेवल है ज्ञान दर्शन का, तो हमारे समझ में आता है चाहे बुद्धि से हो, तो मतलब आप नीचे आके बात कर रहे हैं कि हमारा डेवलपमेंट उतना प्रोग्रेस हुआ है, वो जानना है. हम तो एग्जाम्पल देते हैं ना, वो नीचे आके बात करते हैं क्योंकि सीधा आपको विज्ञान का सिद्धांत नहीं समझ में आता है, तो एग्जाम्पल आता है तो वो हम डाइल्यूट करके देते हैं तो आपको इजी टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल. एकदम सिद्धांत समझ में नहीं आएगा. जब एग्जाम्पल दूंगा तो आपको वो बात समझने का आसान हो जाएगा. तो ये लो लेवल नहीं है, मगर ये एग्जाम्पल जो देते हैं मतलब आपकी कैपेसिटी डायरेक्ट वो साइंस का प्रिंसिपल समझने की नहीं है, तो इसीलिए फिर एग्जाम्पल देना. मतलब आपका जो विजन है वो हाई लेवल का है, वही आ रहा है नीचे. मेरी प्रकृति में मैं अभी का जो उदय है वो ये लेकर आया हूँ कि कोई भी व्यक्ति मेरे पास आएंगे तो मैं कहूँगा मेरे पास से ये आध्यात्म विज्ञान का अनुभव है और वही मैं पेश करूँगा. अगर आपको धर्म की बात सुननी है, धार्मिक क्रियाओं की बात सुननी है, तो जहाँ भी करते हैं वहाँ जा सकते हैं. मेरे पास यही है, सिंपल हो गया. मैं क्योंकि देखो दादा भगवान का रोल क्या था, उनको ज्ञान देना था, शिष्य बनाने का था, ज्ञान देकर व्यवहार से. उनको गुरु शिष्य की बात नहीं थी, मगर व्यवहार तो कहेंगे मैंने आपको ज्ञान दिया है तो यू आर अंडर मी. आप समझे ना? तो उसीलिए वो उनको लिए रिस्पॉन्सिबल थे क्योंकि उनको समर्पित भी हुआ है. मन वचन काया, भाव कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म और नाम की माया आपको समर्पित किया है. नाउ फ्रॉम टुडे यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माय प्रोग्रेस एंड आई हैव टू फॉलो व्हाटएवर यू सेज. करेक्ट? तो ये दोनों की बात हो गई. हमारे साइंस के अंदर ये कुदरती ऐसा रोल निकला है कि यहाँ किसी को समर्पित होना नहीं है. क्या नहीं है?
और इसीलिए किसी को मेरी बातों को, मेरी ज्ञान को, मेरी आज्ञा को या मेरे साधनों को फॉलो करना नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट हो गया है। जो साइंस मैंने अनुभव किया है वो आपके सामने पेश करता हूँ, और वही साइंस आपको समझ के उपयोग करके वही साइंस का आपको अनुभव करना है। तो यहाँ गुरु शिष्य कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्या नहीं है, और कुछ फॉलो करना है नहीं करना है वो भी कॉन्सेप्ट नहीं है। उपयोग तो ये इस लेवल की जो कुदरती बात निकली है और वही लेवल से लोगों को समझ में भी आ जाता है, तो फिर नीचे आने की जरूरत नहीं है। मतलब उपयोग तो ठीक है, चलो 2 नंबर के बाद है, लेकिन मतलब बुद्धि से समझ में आ रहा है विज्ञान, तो वही तो हमारा डेवलपमेंट हम मान सकते हैं उतना। आप जो समझा रहे हैं तो वो तो अच्छा लगता है, मतलब बुद्धि से मान लो अभी उपयोग से उतना 100% नहीं हो रहा है। तो और बार बार हमको आपके पास आने का अच्छा हो रहा है, मतलब कुछ तो हमारे अंदर डेवलपमेंट होगा तभी तो यहाँ आने का मन कर रहा है ना। चलो कहीं और जाना नहीं है, ये जो स्वामी जी बता रहे हैं जो भी लेवल का है, मतलब आपका तो हाई लेवल का है, लेकिन हमको समझ में आ रहा है वही बड़ी बात है हमारे लिए। तो बड़ी बात है, आपके लिए बड़ी बात, सबके लिए जो समझ में आता है विज्ञान वो बहुत बड़ी बात है। सुनना अलग बात है और समझना अलग बात है। समझ में आता है, इट इज वेल एंड गुड, तो एप्लीकेशन का स्कोप है, क्या है। जब समझ में ही नहीं आएगा तो एप्लीकेशन कैसे रहेगा, तो ये अच्छी बात है। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। लास्ट क्वेश्चन, कई बार क्या होता है सोशल लाइफ में, कभी कसाई भी होता है लाइफ में, फैमिली में, या गुस्सा भी होता है, तो 2 तरह से प्रॉब्लम होता है। एक तो इस तरह से होता है कि ये चलो मन वचन काया है, उसको हम कंट्रोल में नहीं है, एक वो है विज्ञान समझ में आया। दूसरा ये आता है कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये गलती तुम्हारे से हुआ ही है और दोबारा नहीं हो, मतलब अंदर ही अंदर दोष देता है। फिर भाई ऐसा क्यों कर रहे हो आप अपने विज्ञान के लेवल से जा रहे हो, ये रास्ते पे जा रहे हो, तो आपका जो बिहेवियर है वो नहीं होना चाहिए ऐसा लाइफ में। तो मतलब दोनों तरफ से ऐसा होता है, एक विज्ञान भी समझ में आता है कि ये चलो प्रकृति है उसका रोल कर रहा है, लेकिन दूसरे एंगल से देखें तो अंदर दुख भी होता है कि ये नहीं होना चाहिए, क्यों हो रहा है, बार बार क्यों हो रहा है ऐसा तो कभी बार होता है। वो तो आपका डिस्चार्ज अंतस्करण है, उसके अंदर आप ज्ञान दर्शन मैकेनिकल परिणाम स्वरूप लेकर आए हैं। तो वो लेकर जब आए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो काम तो करेगा, हमको क्या करना है, जुदा रहने का है, वो तो काम तो करेगा। कुछ लेवल दुख तो होता है कि ये नहीं होना चाहिए, मतलब वही बात कहता हूँ ना कि ये सब रिलेटिव सत्य है। क्या है, दुख होता है वो भी रिलेटिव सत्य है, और सुख होता है वो भी रिलेटिव सत्य है। डूअरशिप होता है वो भी रिलेटिव सत्य है, और ओनरशिप होता है वो भी रिलेटिव सत्य है। मतलब दुख क्यों होता है कि हम चलो विज्ञान के रास्ते पे चल पड़े अभी समझने के लिए, जानने के लिए, फिर भी ऐसा हो रहा है तो ज्यादा दुख हो रहा है। अब एक बार अंदर से ऐसा विज्ञान समझने की कोशिश कर रहे हो और ये ऐसा हो रहा है, गुस्सा हो रहा है। इसीलिए कहा ने कि भी अंतस्करण जो डिस्चार्ज है उससे भी क्या रहना है, आपको अलग रहना है, क्योंकि अलग है, यही तो अनुभव करना है। इससे अलग रहना है वो तो एक बात है, मगर जो अंतस्करण जो डिस्चार्ज है उससे भी क्या रहना है, क्योंकि उनका भी जो चार्ज है तो डिस्चार्ज तो होगा ही, तो अपना भी तो रोल रहेगा कि नहीं रहेगा। अपना बिलीफ कहो, व्यू पॉइंट कहो, अपना मंतव्य कहो, वो तो रहेगा ना डिस्चार्ज में, तो वो तो रोल करेगा कि नहीं करेगा। इसको चेतन मानना, लाइव मानना, एक्टिव मानना, वो हमारी अज्ञानता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो हमारा बीज है, अभी नया बीज वो डाल सकते हैं ना। वो हमारा सब्जेक्ट क्या है कि अगर आपको प्रायश्चित करना है तो आध्यात्म विज्ञान में कौन सा प्रायश्चित होना चाहिए, सब्जेक्ट टू एक्शन नहीं होना चाहिए, सब्जेक्ट टू कॉज होना चाहिए। कि भाई ये प्रकार के जो संजोग के भुगतान मेरे को आई मन से, वचन से या काया से, वो इस प्रकार की भुगतान मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि ये अच्छी और बुरी है इसीलिए नहीं, मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक नहीं है। तो हमारा अभी कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। पहले व्यवहार में क्या करते, ये मेरा दुख वाला संजोग नहीं चाहिए और सुख वाला संजोग चाहिए, तो ये रिलेटिव सत्य का ही एंगल था। अभी हमारा एंगल रिलेटिव सत्य का है, ये संजोग इसीलिए पसंद नहीं है क्योंकि मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक नहीं। तो ये मन से, वचन से, काया से जो कुछ भी गलती हो गई है,
वो किसके साथ किया, क्यों किया, कितनी बार किया, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। उनसे उसको क्या इफेक्ट होगी वो भी समझने की जरूरत नहीं। हमको ये संजोग ही नहीं चाहिए, क्योंकि मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक नहीं है। तो दोनों, अगर कोई इसका व्यवहार किसी को पसंद भी है वो भी हमको नहीं चाहिए, यानी राग वाला भी नहीं चाहिए और द्वेष वाला, ये दोनों की बात है। समझ में आया ना? हाँ, तो ये बात हमको समझना है। सोशल लाइफ में क्या ऐसा तो बार बार होता ही रहता है, आगे भी ऐसा लगता वो है तो होता ही रहेगा। तो हमारे लेवल से हमको कंप्लीट रहना है, इसका मतलब क्या है? हाँ, एक चित्त होता है ना स्वामी जी, वो तो क्या होता है कि एक एक बार वो तो मालूम होता है ये चित्त भी डिस्चार्ज है और इससे मैं अलग शुद्धात्मा वो मालूम होता है और दृष्टि भी रहता है। एक एक बार क्या होता है कि चित्त कुछ तन्मयाकार होता है। चित्त में क्या क्या, वो तो चित्त उधर उधर ढूंढते रहते हैं, वो तो उधर तो तन्मयाकार होता है ये प्रतिष्ठित आत्मा, तब तो वो तो दृष्टि नहीं रहते हैं, वो तो बाद में मालूम होता है वो तो चित्त कुछ तन्मयकार हो गया प्रतिष्ठित आत्मा चित्त में, और बाद में होता है ये तो क्या है डिस्चार्ज ही होता है। लेकिन उधर तो हमें उस समय तो दृष्टि नहीं था ना, वो तो चार्ज होगा और बाद में मालूम हो गया, और उसके पहले भी था और बाद में भी है, वो तो क्या है ये तो प्रतिष्ठात्मा, वो तो तन्मयकार हो गया, वो तो उस समय चार्ज होता है, सुख में होता है, या तो ये चित्त तो सुख में भी तन्मयकार हो सकता है और दुख में भी तन्मयकार हो सकता है, वो चार्ज होता है या नहीं? बताऊंगी आपको। ये वैसे तन्मयाकार नहीं होता है, मगर तन्मयाकार होना वो उसकी अज्ञानता है, अज्ञान का एप्लीकेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? अज्ञानता। होता है तो कुछ भी, स्थूल कहो या सूक्ष्म कहो, जो भी होता है वो मैकेनिकल पार्ट को ही होता है, स्थूल कहो या सूक्ष्म कहो। मगर भ्रांति से विज्ञान का एप्लीकेशन की अपनी कचास के कारण उसमें जुड़ जाता है, बस वो गलती हो जाती है, तो फिर उसका तो सफरिंग आएगा, वो चार्ज हो जाएगा। बाद में भी भले आपको विज्ञान आया और आपने एप्लीकेशन भी किया, मगर वो विज्ञान काम में आएगा, गलत नहीं रहेगा। मगर उससे पहले जो हो गया है इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल तो हो। तो कहने का मतलब वो धीरे धीरे आपका ज्ञान जो है वो ऑन द स्पॉट होना चाहिए, वो परफेक्शन है, हर क्षण होना चाहिए। हाँ, ऑन द स्पॉट एंड हर क्षण जो हर क्षण होना चाहिए। अभी तो क्या स्लोली स्लोली, वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लक्ष्य में रखना है, लक्ष्य में रखना है, वो तो हर क्षण होना। और एक है हमने आपके सत्संग सुने हैं, वो तो क्या होता है कि ये सब क्या है, अभी तो हम पेपर सबमिट नहीं किए हैं कुदरत के पास, वो तो बदल सकते हैं ना? बदल सकते हैं। वो कैसे बदल सकते हैं? वो क्षण तन्मयकार हो गए, चित्त इसको इरेज कर सकते हैं। अरेस्ट कैसे कर सकते हैं हम? उसके लिए आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैंने मिस्टेक किया है। वो तो मिस्टेक नहीं, वो प्रतिष्ठित आत्मा उधर तो क्या तन्मयकार हो गए ना, वो तो चार्ज हो गया। नहीं, आपको अगर कोई प्रकृति का रोल है जिसमें किसी को दुख हो गया है, उसको आपको करेक्शन करना है, तो पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना कि ये गलती मैंने किया है। तो वो एक्सेप्ट करोगे तो ये अज्ञान पक्का होगा और कर्म आपका लाइट होगा। वो तो हमने कहता है ये तो ये किए है, वो वैसे हमने क्या एक्सेप्ट किया है कि वो तो मेरा होना नहीं, वो तो प्रतिष्ठित आत्मा उधर, फिर छोड़ दो ना इसको, उसको छोड़ना है, वो बेस्ट सॉल्यूशन है। इसलिए मैंने कहा पास्ट में जाना ही नहीं है। हाँ, आप समझे? होना तो हो गया, उतना ही। अतिक्रमण कर सकते हैं, मगर विज्ञान में जरूरी नहीं है आगे बढ़ने के लिए। मगर उसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको सफरिंग नहीं आएगा, सफरिंग तो आएगा, मगर हमारा अभी फोकस अज्ञान निकालने के लिए है, कर्मों को कम ज्यादा करने के लिए वो नहीं फोकस है। अगर वहां डालोगे तो फिर विज्ञान में नहीं रहेगा, फिर अज्ञान पक्का होगा। दोनों में से एक तो करना पड़ेगा।